Hello friends, welcome back in my another lecture. Today I am going to start with the linear programming. So what is linear programming? This is the most important optimization. Optimization means maximization or minimization technique developed in the field of operation research, right? The general structure of the general structure of any linear programming model consists of three component. इसमें तीन components होते हैं main components. The first one is a decision variables. The variables x1 x2 so on continue in this way xn are called as decision variables. इनको हम डिसीजन वेरिएबल्स बोलते हैं बिकॉज वाई वी कॉल्ड सो बिकॉज these are under the control of decision makers, right? Also all decision variables are continuous. सारे के सारे continuous होंगे, controllable because these are controlled by decision maker, controllable and non negative, 0 से बड़े होंगे, right? That is x1 x2 so on continue xn all are greater than equal to 0, non negative होंगे. So that means decision variable. So इनको हम small letter से denote करेंगे x1 x2 xn in this way. And the second one is objective function. The objective of each linear programming problem, this is a mathematical representation of the objective in terms of measurable quantity such as प्रॉफिट, कॉस्ट के फॉर्म में भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, रेवेन्यू, डिस्टेंस एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन दिस वे एटसेट्रा, राइट? इट्स डिनोटेड बाय, इसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं एंड इज गिवन एज, और इसको मैथमेटिकली देंगे कैसे, गिवन एज ऑप्टिमाइज means maximize or minimize z which is equal to c1 x1 c2 x2 continue in this way cn xn, right? That is z is a linear function of decision variables x1 x2 dash dash xn, इनका लीनियर फंक्शन है, राइट? ऑल्सो इसमें कुछ और भी चीज़ आ रही है ऑल्सो c1 c2 dash dash cn, दीज आर पैरामीटर्स, इनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं, पैरामीटर्स, और अनकंट्रोलेबल वेरिएबल भी बोलते हैं इनको, अनकंट्रोलेबल variables. These are not in the control of decision makers, right?
which gives the unit contribution of respective decision variables x1 x2 dash dash xn to the objective function z. So these are not just parameters or coefficients or uncontrollable variable. These actually decide how much a particular decision variable x1 x2 or xn is going to contribute toward the objective function. That is also decided by these uncontrollable parameters, right? So this is all about objective function. तो ये भी लीनियर होगा, क्लियर है, बिकॉज डिसीजन वेरिएबल ये जो वेरिएबल्स है हमारे पास इनकी पावर क्या है, 1 है. सो दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज लीनियर और ई की ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा. एंड थर्ड वन इज कांस्टेंट, द लास्ट कंपोनेंट. देयर आर ऑलवेज सर्टेन लिमिटेशन या कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं उनको, limitations or constant on the use of limited resources such a man, material, machine, कुछ भी हो सकता है, जो भी resources अवेलेबल होंगे, राइट, such as man, material, machine, etc., right? Such constraints must be expressed as linear, या तो इनइक्वलिटी के फॉर्म में भी हो सकते हैं, लीनियर इनइक्वलिटी, और इक्वलिटी के फॉर्म में भी हो सकती है ये कॉन्स्टेंट्स. इक्वलिटी in terms of decision variables, right? The solution of LP problem must satisfy these constants, right? ये constant ये linear होगी, first of all these are linear and are expressed in terms of decision variables, right? एंड सेकंड जो ये कांस्टेंट होगी कोई भी सोर्सेज के लिए हो सकती है, मैन मटेरियल रिसोर्स जो भी अवेलेबल हो गए, मैन मटेरियल मशीन एटसेट्रा जो भी होगा, कॉस्ट प्रॉफिट. एंड सेकंड इज व्हेन वी get the solution of LPP means value of decision variable, those value of decision variable must satisfy these constants, right? So this is all about three components of the linear programming, right? Next come to the what are the assumptions of linear programming. There are four main assumptions of linear programming, assumptions which are supposed to be true without any proof. So first is certainty. In all LP problems, it's assumed that all the parameters such as availability of resources, profit, या बोल दो कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट और कॉस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट ऑफ डिसीजन वेरिएबल, of a unit of decision variable, and consumption of
resources by a unit of decision variable must be known and constant. सो व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली, जो भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगी उसको अगर हम एलपी प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे, उसमें जितने भी पैरामीटर्स होंगे, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, मैन मटेरियल मशीन, एंड बट विल द प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन और कॉस्ट कंट्रीब्यूशन ऑन वन यूनिट ऑफ डिसीजन वेरिएबल एंड how much resources are used by one unit of decision variables, all are known in advance, means all are given in the question, and these are fixed, these are constant, that means a certainty. This is the first assumption. Now come to the second assumption. Second assumption is divisibility. Divisibility means the solution values of decision variables and resources used are assumed to have either whole number value or mixed numbers values, right? whole number values और mixed number values means जब हम एलपी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसका जो सॉल्यूशन आएगा मींस द वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल, जिसको हम वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं, जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो या तो होल नंबर्स होंगे या तो वो क्या होंगे, होल नंबर्स इंटीजर्स बोल दो, या मिक्स नंबर मीन्स डेसिमल फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं. सॉल्यूशन रिसोर्सेज यूज्ड वो होल नंबर में हो सकता है, डेसिमल फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, दैट मीन्स divisibility. This is second assumption. Third assumption is additivity. The value of objective function for the given values of decision variables and the total sum of resources used must be equal to sum of the contribution and what kind of contribution, profit or cost, कुछ भी हो सकता है आपके पास, contribution is profit or cost etc, और भी हो सकता है कुछ, earned from each decision variable and the sum of the resources used and sum of the resources used by each decision variable respectively. So additivity means respective means इसमें दो चीजें आ रही हैं, दो स्टेटमेंट आ रही है. फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द प्रॉफिट और कॉस्ट कंट्रीब्यूशन which is earned from each decision variable, and second statement is the total sum of the resources used must be equal to sum of the resources used by each decision variable, that means respectively. तो इसमें दो स्टेटमेंट आ रही है, दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट must be equal to, first statement is this one, this must be equal to sum of the contribution profit earned from each decision variable, and second statement is the total sum of the resources used by the each decision variable, right? And
फोर्थ एंड लास्ट वन assumption इज linearity. द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमने पहले डिफाइन किया था, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ऑल द कॉन्स्टेंट्स जितनी भी होंगी, चाहे मेन कॉन्स्टेंट या नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, एंड ऑल द कॉन्स्टेंट्स आर लिनियर. किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जितने भी कांस्टेंट है, सारे के सारे कैसे होंगे, लीनियर होंगे. मींस वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल उसमें क्या होगी, 1 होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट assumption of the linear programming. Now come to the advantages of linear programming. There are many advantages and few I am going to list here. The first one is LP linear programming techniques helps in making optimum utilization of resources, राइट. अगर हम किसी प्रॉब्लम में लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं, सो दिस हेल्प इन मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. जो मैन, मटेरियल, मशीन एटसेट्रा है, उनको हमने कितना यूज करना है, हाउ मच मैन पावर्स टू बी यूज्ड, हाउ मच मशीन्स आर टू बी यूज्ड, एंड हाउ मच मटेरियल्स आर टू बी यूज्ड. दैट वो हेल्प हमारे को सारी किससे मिल सकती हैं. ऑप्टिमम मीन्स कितना मैक्सिमम या मिनिमम हमने मैन पावर्स, मशीन या मटेरियल्स यूज़ करना है. दैट मीन्स वो हेल्प हमारे को कहाँ से मिल सकती है, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक से. सो सेकंड वन इज इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन. दिस मीन्स जो भी हमने डिसीजन लिया है, जो डिसीजन मेकर्स ने जो भी डिसीजन लिया है, कितना मैन मटेरियल यूज़ करना है, मशीन यूज़ करनी है, वो डिसीजन को हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो दिस हेल्प कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम या while using linear programming technique. And third one advantage is linear programming techniques. These provide possible or प्रैक्टिकली एप्लीकेबल सॉल्यूशन. जो पॉसिबल भी होगा और प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी होगा, वैसा सॉल्यूशन ये देते हैं या प्रोवाइड करते हैं. सिंस देयर माइट बी other constraints operating outside the problem, which may be taken into account. So just because we can produce so many units doesn't mean that all can be sold, राइट. समटाइम हो सकता है कभी हमने बहुत सारे यूनिट प्रोड्यूस कर लिए, सारे आपके सोल्ड नहीं हुए. सेकंड टाइम हो सकता है आपके पास क्या हुआ, आपके पास सारे के सारे सोल्ड हो गए. इट ऑल डिपेंड ऑन द मार्केट डिमांड, राइट. सो necessary modification in mathematical solution is required from time to time या with the passage of time by decision maker, राइट. तो सॉल्यूशन को भी हमारे को मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा एज पर चेंजिंग कंडीशंस, बिकॉज एज पर, और बोल सकते हैं एज पर मार्केट डिमांड्स.
जो भी सॉल्यूशन या प्रैक्टिकली एप्लीकेबल सॉल्यूशंस आएंगे. एंड द फोर्थ वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट हाईलाइट द bottleneck in the production process. So bottleneck means this is a process in chain of processes. बहुत सारे processes में कि एक process है whose limiting capacity reduces the capacity of the whole process, right? या ऐसा भी बोल सकते हैं आप, bottleneck means this is a slowest process या slowest machine working in the production process, right? आपने सबने बॉटल देखी है. दिस इज द बॉटल. This is bottle. You can see from here up to this position there is a free flow of material. वो कितनी भी फास्ट चल सकता है, बट वंस ऑल ऑफ सडन यहाँ पर जब पहुंचेगा, यहाँ से आपके पास क्या है, द फ्लो. आपके पास क्या है, द फ्लो. आपके पास क्या हो रहा है, फ्लो इज नॉट एज पर द स्पीड दैट इज फ्रॉम द प्रीवियस, राइट. यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही आपका हो सकता है ड्रॉप बहुत ही कम मात्रा में निकलेगा आगे को. सो दिस इज तो बॉटल लाइक में दिस इज लाइक अ बॉटल. सो लेट मी टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द bottleneck. Let us suppose we have three machine. This is machine A, second is machine B, and third is machine C, right? This is machine A, B, C. Let us suppose in production process, this is a production process, and there are three machines working, right? And let us also 2 minutes per unit, and let us put this take 4 minutes per unit, and this take 3 minutes per unit. यहाँ पर आपके पास मटेरियल आ गया, बहुत सारा मटेरियल आ गया आपके पास स्टार्टिंग में, राइट. सो 2 minutes per unit means दिस मशीन टेक्स 2 मिनट टू प्रोसेस ऑफ 1 यूनिट. एक यूनिट को प्रोसेस करने के लिए इस मशीन को 2 मिनट लगता है. एक यूनिट को प्रोसेस करने के लिए इस मशीन को कितना लगता है, जब यहाँ पहुँचेगी तो इसके लिए 4 मिनट लगते हैं. एक यूनिट को प्रोसेस करने के लिए इस मशीन को 3 मिनट्स लगते हैं. इट मीन्स इट्स कैपेसिटी पर हार विल बी 60/2 से डिवाइड करेंगे तो 30 यूनिट. सो दिस मशीन कैन पुश आउट 30 यूनिट्स in 1 hour. So इसकी कैपेसिटी अगर हम निकालेंगे 60/4, so this machine can push out of 30 units. यहाँ पर 30 units आ जाएंगे as per capacity per hour. So this machine can push out out of 30, this machine can push out only 15 units as per its capacity. Similarly it means यहाँ पर 15 पहुँचेंगे, so its की कैपेसिटी क्या होगी, its की कैपेसिटी हो जाएगी 60 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे यह आ जाएगा 20 यूनिट. So this machine can push out 20 यूनिट्स इन 1 hour. तो इसकी कैपेसिटी 1 hour 20 यूनिट्स है. सिंस ओनली 15 आर अवेलेबल, सो फाइनली ओनली 15 प्रोडक्ट विल कम आउट ऑफ द होल दिस प्रोसेस, राइट. 15 यूनिट विल कम आउट ऑफ द होल प्रोसेस इन 1 hour. पर हार में इतना आपके पास आएगा पूरे प्रोसेस में. तो ये 15 यूनिट्स आएंगे. ये कितने टाइम में आएंगे, 2 मिनट 6 मिनट 9. सो 9 मिनट्स में मीन्स एक यूनिट को प्रोसेस करने के लिए, तो एक यूनिट को प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 9 मिनट. तो मैं आपको 15 यूनिट मिलेंगी इस तरह से 1 hour में, राइट. तो इसके अकॉर्डिंग एज पर कैपेसिटी यू कैन सी हियर विद द पासेज ऑफ टाइम. जैसे 1 hour हो गया, 2 hour हो गया, यहाँ पर 1 hour में 30 है, 2 hours में 60 हो जाएगा. तो यहाँ से 2 hours में कितने आउट ऑफ 60 यहाँ से 30 निकलेंगे. 3 hours में यहाँ 45 सॉरी यहाँ 90 हो जाएंगे. 90 में से यहाँ केवल 15 पर हार के हिसाब से यहाँ पर 45 निकलेंगे. सडनली यू कैन सी दैट विद द पासेज ऑफ टाइम यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट स्टार्ट इंटीग्रेटिंग हियर इन मास. सो बिकॉज एज पर इट्स कैपेसिटी इट्स पुशिंग आउट ओनली 15 यूनिट्स पर हार. सो यू कैन सी this machine have limiting capacity. So because of its limiting capacity, it's reducing the capacity of the whole, because the capacity of machine C per hour is 20 unit, because so it's going to push out only 15 products. So limiting capacity of this machine is reducing the capacity of the whole process, right. It means this machine is slowest है, या आप बोल सकते हैं this is acting as a this is acting as a bottleneck. This is acting as a bottleneck in the production process, right. This is slowest machine. So when we are using linear programming technique, it highlights or identify which machines are
वर्किंग स्लोली, तो उन मशीन को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। एंड एज पर मार्केट डिमांड, हम कोई दूसरी मशीन लाएंगे और जितनी डिमांड हमारे को यूनिट्स की है, ज़्यादा यूनिट्स की डिमांड है, तो हम क्या सोचते हैं, वी कैन देन वी कैन मीट और मार्केट डिमांड। सो दिस मीन्स ये हाईलाइट करती है या आइडेंटिफाई करती है, फिगर आउट करती है बॉटलनेक कौन सी मशीन स्लो प्रोसेस कर रही है। एंड द फिफ्थ वन इज it provide it provides better tools, right, better tools for meeting the changing conditions, meet the passage of time, for meeting the changing conditions. And last advantage is it's most suitable for solving complex problem, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व करने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक है, दिस इज द मोस्ट सूटेबल। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। लेट्स मूव फर्दर। limitations of linear programming, there are certain limitations of linear programming. Those are, in some problem objective function and constants are linear, right? Because linear programming technique it talk about only objective function and constant, जो constant जितनी भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, linear होंगे। whereas in real life situation, whereas in real life situation concerning बिजनेस या मान लो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स कॉन्स्टेंट्स आर नॉट लीनियर। कोई अगर मान लो बिजनेस या दूसरी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स होगी, कॉन्स्टेंट्स आर नॉट linear. So this is one of the limitation of linear programming. Second is there is no guarantee of getting integer value solution, because this talk about divisibility, means integer value solution भी आ सकती है और मिक्स्ड डेसिमल फ्रैक्शन में भी वैल्यू आ सकती है। तो अगर मान लो आपको इंटीजर वैल्यू ही आएंगी तो कोई ऐसा कोई आपके पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या गारंटी नहीं है कि मेरे को इंटीजर सॉल्यूशन ही आएंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ, फॉर एग्जांपल in finding out how many men and machine would be required, right, would be required to perform a particular job, to perform a particular job, right, to perform a particular job, और नॉन इंटीजर वैल्यू अगर मान लो आपके पास आती है और नॉन इंटीजर valued solution is meaningless. मीन्स अगर मान लो हमारे पास आगे हम बोलेंगे हमारे को 50.5 मैन चाहिए या 24.6 मशीन चाहिए, दैट इज मीनिंगलेस। बिकॉज ऐसे केसेस में आपके पास क्या हो जाएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है हम ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन में मैन या मशीन्स यूज़ करेंगे, राइट। even if rounding off to the nearest integer
अगर मान लो उन वैल्यूज़ को अगर हम नियरेस्ट इंटीजर को भी राउंड ऑफ कर लें, नियरेस्ट इंटीजर विल नॉट गिव an optimal solution, right? Will not give an optimal solution. So ऐसी प्रॉब्लम अगर मान लो हमारे को इंटीजर सॉल्यूशन ही चाहिए, तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक सेपरेट प्रोग्रामिंग है, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटीजर प्रोग्रामिंग. तो अगर मान लो आपको एग्जैक्टली इंटीजर सॉल्यूशन ही चाहिए, उसके लिए हम ये इंटीजर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. दिस हैंडल ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसके लिए हमारे को इंटीजर सॉल्यूशन ही चाहिए, तो हम उसको इंटीजर प्रोग्रामिंग से कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ विद लीनियर प्रोग्रामिंग. द थर्ड लिमिटेशन इज एलपी मॉडल doesn't take into count or consideration the effect of time and uncertainty. Since we know that from assumption linear programming, this talk only about the certainty, everything will be fixed, everything is given in advance. So what will be the effect of time and what will be the effect of uncertainty? So these are the limitations, right? This says nothing about these things. So this is another limitation. And fourth one is sometimes large scale problem cannot be solved with linear programming techniques even when computer facilities are available. Computer facilities are available, right? Such difficulty may be removed by decomposing the main problem. हम क्या करते हैं, उस लार्ज प्रॉब्लम को हम डिकम्पोज कर लेंगे. मेन प्रॉब्लम into several small problems and then solving them separately, राइट. तो हम अगर लार्ज प्रॉब्लम है जो कंप्यूटर फैसिलिटीज से भी, कंप्यूटर की हेल्प से भी हम उनको सॉल्व कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर लेंगे स्मॉल प्रॉब्लम में, और उन स्मॉल प्रॉब्लम्स को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे. सो नेक्स्ट लिमिटेशन इज पैरामीटर अपीयरिंग इन लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट. तो हम तो पहले से पैरामीटर्स कांस्टेंट नहीं, फिक्स, वो ऑलरेडी फिक्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं. व्हाट इन रियल लाइफ सिचुएशन, व्हाट इन द real life situations they are, ये जो पैरामीटर्स हैं, they are neither constant nor known, ना तो वो कांस्टेंट होते हैं ना तो नॉन होते हैं. And next limitation is linear programming deals only with the single objective, because linear programming में एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, whereas in real life situation problems कम भी बोल सकते हैं, प्रॉब्लम may come across with multiple objectives. तो because LP talk about only single objective, अगर मान लो हमारे रियल लाइफ सिचुएशन में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव आएगा, then we are not in a position to solve that problem with the help of linear programming technique. So such problems are handled by separate programming. वो है उसको बोलते हैं गोल प्रोग्रामिंग, उसके लिए हम अलग से प्रोग्रामिंग है हमारे पास. ऐसी प्रॉब्लम को हम
सॉल्व कर सकते हैं या हैंडल कर लेती है गोल प्रोग्रामिंग। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम गोल प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकते हैं। सो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। नाउ what will be the general formulation of LPP, how linear programming प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम दी होगी उसको मैथमेटिकली कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, वी विल सी हियर दैट, राइट। द जनरल formulation of linear programming problem with n decision variables and m constants। डिसीजन वेरिएबल तो n होंगे और कॉन्स्टेंट्स हमने कितनी सपोज की, m सपोज की। कॉन्स्टेंट्स कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। कैसे हम कैसे उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। ऑप्टिमाइज मीन्स मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z, जिसको हम देते हैं c1 x1 c2 x2 प्लस कंटिन्यू इन दिस वे cn xn। so this is linear function of the decision variable x1 x2 xn because we have n decision variables, right। subject to constant, subject to constants। क्या क्या constants हो सकती हैं, फर्स्ट इज a11 x1 12 x2 a1n xn बिकॉज डिसीजन वेरिएबल्स आर n। तो यहाँ पर सिंबल लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी यहाँ पर सिंबल हो सकता है और राइट साइड में कोई पैरामीटर होगा, दैट इज फर्स्ट वन में b1 लेंगे। सिमिलरली सेकंड हमारे पास कांस्टेंट ऐसी हो सकती है 21 x1 22 x2 कंटिन्यू इन दिस वे, तो हो जाएगा 2n xn। अगेन सिंबल में भी लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पर अनदर पैरामीटर होगा b2, राइट। सो कंटिन्यू इन दिस वे बिकॉज हाउ मेनी कॉन्स्टेंट विल बी देयर, m कॉन्स्टेंट, फर्स्ट कॉन्स्टेंट सेकंड और mth में क्या हो जाएगा यहाँ पर a m1 x1 a m2 x2 कंटिन्यू इन दिस वे, यहाँ पर क्या आएगा a mn xn। अगेन यहाँ पर सिंबल होगा लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पर क्या आएगा बी एम बिकॉज एम कॉन्स्टेंट, ये फर्स्ट कॉन्स्टेंट है, ये सेकंड कॉन्स्टेंट है, ये mth कॉन्स्टेंट है हमारे पास, राइट। सो इन वी नो c1 c2 cn दीज आर अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स, राइट। इनको तो हम अनकंट्रोल्ड वेरिएबल भी बोलते हैं या पैरामीटर्स भी बोलते हैं, राइट। these decide how much of particular decision variables are going to contribute toward objective function। और इसमें कुछ और पैरामीटर्स आ रहे हैं b1 b2 bm, और इनको हम बाय डिफॉल्ट हम इनको नॉन नेगेटिव सपोज करते हैं। मीन्स ये नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं और पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी नेगेटिव होगा वी कैन मल्टीप्लाई दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट बाय बोथ साइड बाय -1। अगर मान लो ये नेगेटिव है तो हम इसकी बोथ साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट नॉट गोइंग ओनली टू चेंज द साइन ऑफ द कोफिशिएंट। ये इनके साइन ही चेंज नहीं हो गए, प्लस का माइनस माइनस का प्लस और ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा। sign of the coefficients in left hand side and the sign of the parameters in right hand side, but also the sign of inequality also get change। अगर मान लो तो इक्वल हो तब तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर लेस देन सिंबल है तो वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स b1 b2 bm these must be non negative, राइट। सेकेंड इज इन ये जितने भी कांस्टेंट हमारे पास है, m कांस्टेंट है, इसमें सिंबल कोई भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू और इवन इक्वलिटी। इनको बोलते हैं इनइक्वलिटीज और इसको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं इनइक्वलिटीज और इसको क्या बोलते हैं हम इक्वलिटी का सिंबल। मींस इक्वेशन का सिंबल भी हो सकता है और इनइक्वलिटी का सिंबल भी हो सकता है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। सो दीज आर द m कांस्टेंट एंड दिस इज द objective function, one objective function in n decision variables। so this is the general formulation of a linear programming problem। now I'm going to take or one example
or I'm going to illustrate with one example that how a linear programming problem can be formulated. So this is the problem, right? Here we have three type of products are given, right? And profit per unit of each product is given, and assembly time, how much time is required. This is assembly time per unit. दिस इज असेंबली टाइम फॉर प्रोसेसिंग वन यूनिट। एक यूनिट को प्रोसेस करने के लिए अगर प्रोडक्ट ए का एक यूनिट प्रोसेस करना उसके लिए 0.8 हार्स लगेंगे। अगर अगर हमने एक यूनिट प्रोडक्ट सी का प्रोसेस करना है तो उसके लिए असेंबली टाइम करना, असेंबल करने के लिए, उसको असेंबल करने के लिए कितना टाइम लगता है 2.5 आवर। दिस इज गिवन। ऑर्डर कमिटमेंट भी हमारे पास गिवन है प्रोडक्ट ए के लिए और प्रोडक्ट बी सी के लिए इकट्ठे दिए हैं, और पर डे कैपेसिटी भी दी है। प्रोडक्ट ए हम कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं पर डे में 50, प्रोडक्ट बी के हम कर सकते हैं 25, और प्रोडक्ट सी हम क्या कर सकते हैं 30, राइट। वी हैव टू formulate the LPP so as to maximize the total profit. So LPP formulation, the data of given problem is summarized as follows. कैसे हम उसको समराइज कर सकते हैं? मैं गिवन डाटा को समराइज करने वाला हूँ। हमारे पास प्रोडक्ट दिए हैं, तीन टाइप के प्रोडक्ट दिए हैं, ए बी एंड सी। यहाँ पर कुछ इनका टोटल दिया होगा प्रोडक्ट्स का, वो लिखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे जो जहाँ से हमारे पास कॉन्स्टेंट्स क्या होगी या रिसोर्सिस क्या है, वो हम चेक करेंगे, राइट। पहले तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी दी है यूनिट में कि पर डे में प्रोडक्शन कैपेसिटी दी है हमारे पास यूनिट में, यूनिट्स में, राइट। पर डे में हम क्या कितने प्रोडक्ट ए बी सी प्रोड्यूस कर सकते हैं 50, 25, 30, 50, 25, 30, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी पर डे में है। दिस इज गिवन। एंड सेकेंड इज मैन आवर असेंबली टाइम जो दिया है, मैन आवर्स पर यूनिट, ये भी पर यूनिट के हिसाब से होगा। एज वी नो, एक अगर हमने प्रोडक्ट ए का एक यूनिट असेंबल करना है उसके लिए टाइम लगेगा 0.8। सिमिलरली इसके लिए लगेगा एक यूनिट को 0.7 आवर, इसके लिए लगेगा 2.7 आवर। मैक्सिमम हमारे पास असेंबली टाइम दिया हुआ है, हम कितना हमारे पास दिया है 100 आवर्स आर गिवन, 100 आवर मैक्सिमम दिया है हमारे पास। हम या तो सारा का सारा टाइम यूज कर सकते हैं, ये इससे कम, दिस इज मैक्सिमम। थर्ड थिंग दिया हमारे पास ऑर्डर कमिटमेंट दिया हुआ है। ऑर्डर कमिटमेंट भी दिया है हमारे पास कि यूनिट्स में एक यूनिट हमने पर डे डेली कितने प्रोडक्ट ये बनाने हैं, मिनिमम आपको कमिटमेंट इतने तो आपको करने पड़ेंगे, तो मीन्स आपको मिनिमम आपको 20 करने पड़ेंगे आपको। ऑर्डर कमिटमेंट है तो दिस इज 20, और 15 है बोथ बी एंड सी, ये तो डेली ऑर्डर कमिटमेंट है। और फाइनली हमारे को प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन और ये रुपीज़ में दिया है पर यूनिट के हिसाब से, राइट। यहाँ दिए एक यूनिट के लिए अगर हम प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाते हैं उस पर कितना प्रॉफिट है 12 रुपीज़। सिमिलरली इस पर 20 रुपीज़ है। अगर हम सी का एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उस पर प्रॉफिट कितना है 45 रुपीज़। दिस इज ऑल अबाउट गिवन। ये सब कुछ हमारे पास गिवन था स्टार्ट में, बस मैंने डाटा को थोड़ा ऑर्डर में समराइज किया है, राइट। ऑल ऑफ दीज आर गिवन। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई, फॉर्मुलेट करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, वी नीड डिसीजन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट तो इन्हीं में से ही बनेगी। डिसीजन वेरिएबल्स कितने होंगे, जितने प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस करने, तो 3 प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस करने, 3 टाइप के प्रोडक्ट्स हमने प्रोड्यूस करने, तो हमारे पास 3 डिसीजन वेरिएबल्स होंगे, राइट। लेट अस सपोज x1 x2, उनको मैंने x1 x2 x3 सपोज किया। लेट अस सपोज x1 x2 x3, x1 x2 x3 विद द नंबर ऑफ यूनिट्स और number of units of product A, B, C to be produced respectively। मान लो x1 के हमने A के हमने x1 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, B के x2 और C के x3। अब हमने करना है, हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, लिख देते हैं यहाँ पर मैक्सिमाइज, टोटल प्रॉफिट को हमने मैक्सिमाइज करना है, और उसको मैंने क्या लिया Z। आप देख सकते हैं अगर हम प्रोडक्ट ए का एक यूनिट पर प्रॉफिट कितना है 12 रुपीज़,
1 यूनिट पर प्रॉफिट है 12 रुपीज़, तो हम तो ए के x1 यूनिट प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो 1 यूनिट पर 12, x1 यूनिट पर 12 टाइम x1। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा 20 टाइम x2, ये बन जाएगा 45 टाइम x3। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज लीनियर एंड दिस इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3 डिसीजन वेरिएबल्स सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, अब देख सकते हैं 1 बाय 1 यहाँ से चलते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो ये कैपेसिटी मीन्स ये मैक्सिमम है, इतने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैक्सिमम है आपको। तो एक्स, तो प्रोडक्ट ए जिसको हमने x1 नंबर ऑफ यूनिट थे, मैक्सिमम कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं 50 या 50 से कम हो सकते हैं। प्रोडक्ट बी कितने मैक्सिमम कैपेसिटी 25, क्यों बिकॉज हम x2 प्रोड्यूस करने वाले प्रोडक्ट बी के, तो ये मैक्सिमम वैल्यू दी है हमारे पास। एंड ये x3 की वैल्यू क्या आएगी 30 या 30 से स्मॉल, तो वही यहाँ से 3 कॉन्स्टेंट यहाँ से निकली प्रोडक्शन कैपेसिटी से। एक निकलेगी मैन हार्स में, एक यूनिट के लिए असेंबली टाइम कितना है 0.8 ए, और ये प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट के लिए 0.8 असेंबली टाइम लगता है, और हम तो इसके x1 यूनिट करने वाले हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय x1। सिमिलरली दिस इज द टोटल टाइम इन आवर द असेंबली टाइम फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। सिमिलरली नेक्स्ट बन जाएगा हमारे पास 1.7 ऑफ x2, नेक्स्ट बन जाएगा 2.5 ऑफ x3। ये टोटल, ये इन तीनों का सम क्या होगा, ये टोटल असेंबली टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ए बी सी, उतना असेंबली टाइम लगेगा। ये असेंबली टाइम इसकी वैल्यू या तो 100 के इक्वल होगी, 100 से स्मॉल, बिकॉज मैक्सिमम टाइम इज गिवन 100, या तो हम सारा का सारा यूटिलाइज कर सकते हैं असेंबली टाइम या इससे कम। एक चौथी यहाँ से आ गई, और क्या हो गया हमारे पास ऑर्डर कमिटमेंट, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से एक यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी। ऑर्डर कमिटमेंट हमारे पास क्या है, आपको 20 तो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो ये मिनिमम है, मिनिमम 20 है। ऑल्सो ऑर्डर कमिटमेंट से x1 तो हमको मिनिमम 20 तो प्रोड्यूस ही करने पड़े, 20 या 20 से ज़्यादा कर सकते हैं। एंड बी और सी मीन्स x2 प्लस x3 मिनिमम आपको 15 तो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो 15 या 15 से ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो 2 यहाँ से कॉन्स्टेंट आ गई। फाइनली नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स आएगी, कौन कौन सी, x1 x2 x3, ऑल ऑफ दीज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नॉन नेगेटिव होने चाहिए, तीनों को तीनों कैसे होना चाहिए नॉन नेगेटिव। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फॉर्मुलेट or given LPP, means we have to identify how many decision variable will be there, then from the given data we can write how many constant will be there. So how many constants are there, there are 3 4 5 6 are the main constant, 6 तो ये हैं, and 3 are the non negative constant, 3 यहाँ से non negative, तो total हमारे पास 9 constants आ रही है and 1 objective function. You can see the objective function as well as all of these constants, whether that is main constant or non negative constant, सारे के सारे कैसे हैं आपके पास, ये सारे के सारे हमारे पास कैसे हैं linear. So this is all about, friend, this is all about this lecture. Thank you.